जी बेटा, welcome you all here to understand exercise 8B, question number 6 onward, in which they have given us the diameter. With the help of that diameter, first we will be calculating their radius, which will remain same for all of the parts. तो बेटा सबसे पहले हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे. as we know that it is half of the diameter. बेटा so radius for all the parts will be equal to 18 divided by 2, which will be equal to 9 centimeter will be used in all of the parts. Now let here be considered your B part. बेटा B part में उन्होंने क्या बताया आपको? area of the sector is given as 117.2 centimeter squares. तो बेटा in fact they are asking for what? They are asking for the angle subtended by the arc of the sector. तो बेटा अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर है एंड इट इज मेकिंग अननोन एंगल, ये एंगल कितना है हमें नहीं पता, इसी को मतलब हमने बताना है. एंड देन देयर इज अनदर रेडियल आर्म 9 सेंटीमीटर. बेटा तो उन्होंने इसका सारे का जो एरिया हमें बताया है ए ओ बी का जो एरिया बेटा उन्होंने हमें बताया हुआ है वो कितना है 117.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटा अब हम लोगों ने थीटा की वैल्यू जो है वो अननोन है वो हमने फाइंड करके देनी है. आई होप नाउ यू विल बी क्लियर अबाउट इट. लेट हियर बी स्टार्टेड विद द बी पार्ट. तो बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर विच इज प्रोवाइडेड टू अस 117.2 इक्वल्स थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई बेटा कितना है 3.142 multiply by r square. In this case it will be 9 square. 9 square will be equal to 81. ठीक है बेटा. Now observe there 117.2 will be multiplied with 360 and whole of this stuff will be divided with 3.142 multiplied by 81. So by moving all these terms we will be getting here the value of थीटा. थीटा को बेटा हम लोगों ने एक साइड पे रहने दी और बाकी सारी टर्म को बेटा हम लोग नेक्स्ट साइड पे लेके हैं तो हमारे पास इस तरह से थीटा की वैल्यू आ जाएगी. नाउ ऑब्जर्व हियर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमरेटर. Now beta please, after dividing I have after making the full calculation and then dividing the terms I got my theta as rounded off 166 degree. Now the summary of the question is that if there will be an angle of 166 degree with a radial arm 9 centimeter, it will surely make area of 117.2 centimeter square. I hope now you will be clear about it. In this very way you will be doing the remaining parts of question number 6. Moving onward to your question number 7, in which they are saying that with the m degree, the figure shows two sectors OAB and ODC with a common center O having the angle m. तो बेटा R is the smaller radius है बेटा. Smaller circle का radius है. Please observe here बेटा. Small r is the radius of the smaller circle, whereas the capital R is the radius of the bigger circle. दो सर्कल जा रहे बेटा. तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं what will be the arc length of the shaded region. एक बात वो आपसे ये पूछ रहे बेटा टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, जिसमें बेटा आर्क लेंथ से आ जाएंगे दो आर्क लेंथ और ए डी प्लस बी सी की लेंथ आ जाएगी. Number one thing. Number second thing, they are saying that what will be the area of. Second बात बेटा वो क्या पूछ रहे हैं what will be the area of the shaded region. बेटा ये दो बातें वो पूछ रहे हैं. So for solving this question, first we will be plotting all of these values in the diagram. बेटा जब आप डायग्राम में ये सारी वैल्यूज को प्लॉट कर लेंगे उसके बाद आपको इसे अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा. लेट हियर बी ऑब्जर्व लाइक योर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 को बेटा अगर आप गौर से देखें
पार्ट नंबर थर्ड में बेटा जो आपको वैल्यूज गिवन है उनमें बेटा वो आपको m इक्वल्स 160 डिग्री, कैपिटल R या radius of the bigger circle will be equal to 49 centimeter and radius of the smaller circle will be equal to 35 centimeter. तो बेटा अगर ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेके O से लेके C तक अगर ये टोटल 49 है, जबकि O से लेके B तक बेटा O से लेके B तक, O से लेके O तक के बराबर है, इट्स मीन दैट इट विल बी ऑफ 35 सेंटीमीटर. सो द रिमेनिंग हेयर विल बी एज कैलकुलेटेड हेयर 49 माइनस 35 विल बी इक्वल टू 14 बेटा. तो इसका मतलब है BC विल बी इक्वल टू AD बेटा, और इन दोनों की जो इंडिविजुअल लेंथ आ रही है दैट विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. After making the calculation in this way or separating all the plotting all the values, उसके बाद बेटा हमारे लिए पेरीमीटर और एरिया की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. Now please observe here बेटा. Let's see here for the same very part. Perimeter is arc length. बेटा आप लोगों ने आर्क लेंथ ए बी फाइंड करनी है, आर्क लेंथ सी डी फाइंड करनी है, और इसी तरह से ए डी प्लस बी सी. AD and BC is done over here equal to 14 सेंटीमीटर बेटा. ये अगर 14 है बेटा तो इसे 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए, क्योंकि AD और BC दो है ना, तो इनके लिए बेटा आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. और आर्क लेंथ ऑफ स्मॉलर सर्कल विद आर्क लेंथ ऑफ द बिगर सर्कल बेटा. इसमें बेटा अब आप वैल्यूज को पुट कर देंगे. व्हाट विल बी द वैल्यूज? इट विल बी 160 divided by 360 multiplied by 2 into pi will be equal to 3.142 into r will be बेटा इसमें आपके पास आर्क ए बी की जब हम बात करेंगे तो उसमें रेडियस क्या आ जाएगा? 35. ठीक है बेटा, हम आर्क ए बी की बात कर रहे थे ना, तो इसके लिए बेटा जो आपके पास रेडियल आर्म है वो कौन से वाली है? वो ये वाली है बेटा, जो आपके पास 35 तक बन रही है. Now next to that one is plus theta by theta यहाँ पे बेटा गिवन है, it will be 160 by and 2 pi 3.142 multiplied by r in this case will be equal to 49. क्योंकि बेटा अब हम बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी आर्क लेंथ आपके पास क्या बनती है? CD. Now making the further calculation of all this one, it will be 28 plus, अब बेटा इन सारों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 360 कर देंगे. लाइकवाइज इन सारे को भी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद याद रखिएगा ये 49 यहाँ पर आ रहा है बेटा, मैंने स्पेस की वजह से उधर लिख दिया था, यहाँ पे असल में 49 आ रहा है बेटा, ये 49, और फिर उसके बाद जो उनका आंसर आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 360. नाउ ऑब्जर्व हियर फर्दर. Now beta, after adding all of these values, I got my answer as 262.57 centimeter. Now once again beta, let here be concluded. कैसे हमने कैसे परफॉर्म किया था? Observe here once again that firstly we have calculated these two arc lengths. एक ये बेटा आर्क लेंथ कह रहा हूँ, ये दो लाइन सेगमेंट बेटा आप लोगों ने 14 के कैलकुलेट किए. उसके बाद बेटा आप लोगों ने आर्क लेंथ ए बी फाइंड की विच वाज इक्वल टू 97.74, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने आर्क लेंथ डी सी फाइंड की विच वाज इक्वल टू 136.83, एंड फाइनली यू हैव गॉट योर आंसर एज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू 262.57. In this way you will be calculating the perimeter of all parts of your question number 7. Now observe here about the area calculation बेटा. एरिया को कैलकुलेट करने के लिए what they are saying that the area of the shaded region बेटा, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के बदले बेटा पहले यूं समझ लें कि आप लोगों के पास ये जो बड़े वाला सेक्टर आ रहा है, लेट हियर बी दिस वन, यहां से बेटा जो आप लोगों के पास बड़े वाला ये जो सेक्टर है, ठीक है, इसका आप एरिया फाइंड करेंगे. और उसके बाद बेटा आप लोग एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर यानी ये वाला पोर्शन जितना भी आपके पास इस सारे का एरिया बी में फाइंड कर लेंगे. जब बेटा इस सारे का एरिया फाइंड कर लेंगे तो इस मीन इन्हें माइनस करने के बाद यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ ब्लू रीजन. आई होप नाउ यू विल बी क्लियर अबाउट द वर्किंग. तो बेटा अब हम लोग इसे स्टेप वाइज स्टार्ट लेते हैं. ऑब्जर्व हियर बेटा.
area of the shaded region will be equal to area of and DOC. तो बेटा उसमें कैपिटल R यूज हो रहा था, पाई बाय सॉरी here it is written पाई, बेटा ये पाई नहीं आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा बाय थीटा बेटा हमारे पास कितना आ रहा है, let it be erased first. बेटा कॉन्सेप्टली क्लियर करने के लिए हम इसे रेज कर देते हैं, फिर उसके बाद इसे दोबारा देख लेते हैं. जी बेटा प्लीज नाउ ऑब्जर्व हियर बेटा, थीटा इन दिस केस विल बी इक्वल टू 160 डिग्री. तो बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर भी बेटा आपके पास 160 डिग्री वैल्यू आ जाएगी. 160 बाय 360, 160 by 360, I got my answer as 0.44. जी बेटा प्लीज ऑब्जर्व हियर, 0.444 multiplied by pi into r square will be in this case 49 square बेटा, क्योंकि हम बिगर सर्कल की बात कर रहे हैं बेटा, इसका रेडियस हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए बेटा आपके सॉरी इसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास रेडियस 49 गिवन था. बिल्कुल इसी तरह से बेटा आप लोग क्या करेंगे, 0.444 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय, इसमें बेटा अब आपके पास रेडियस कितना आ रहा है, 35. तो बेटा 35 स्क्वायर विल बी यूज्ड ओवर हियर. फाइनली आई विल गेट माय आंसर एज, जी बेटा आफ्टर मेकिंग द कैलकुलेशन we will have to subtract 3352.43 minus, I got my area of the shaded region as 1643.72 centimeter square. Now I hope that you will be clear about how you will be making the calculation of area of shaded region for all parts of your question number 7. Thank you beta.